Good morning, dear friends. Today once again we'll start with our topic ray optics and optical instruments. So friends, till now we have discussed about the reflection of light, everything about the reflection of light. Then we have discussed many things about the refraction of light, refraction through the glass slab. Also we have discussed refraction through the prism. And I have also explained you about the refraction through different spherical surfaces, whether it may be concave spherical surface, it may be the convex spherical surface. So depending on the nature of the spherical surface, we will have the different type of refraction of light. And we have concentrated towards the two formulae. One is N2 upon V minus N1 upon U is equal to N2 minus N1 upon R, where N2 is the refractive index of second medium, N1 is the refractive index of first medium, R is the radius of curvature. And then I gave you the another idea about N1 upon U minus N2 upon V is N1 minus N2 upon R. Now depending on the nature of the surface, we have to select R1 and R2. So ये बेटा अपना रेगुलर है, ये रेगुलर बनता है. अगर ये बनता है आपका, if it is there, then this will be my R1. Then if you are taking R1 of this side, so if you are having concave spherical surface, of course with the denser medium, you will select R1 to be negative. If you are having concave spherical surface, of course you will I will suggest you to take R1 to be negative. If you are taking convex spherical surface with denser medium, then you will take R2 you will take, and you will take to be positive. So in this way we have to apply the sign convention rule accordingly in the given situation. तो अपने situation में अगर हम sign convention का rule उसमें follow करते हैं तो हम we will come up with the great equation for the lens maker's formula. So we will put a light on the lens maker formula. There are many things to understand about the lens maker formula. So just let's go for understanding the something details about the lens maker's formula. Then we will go for another thing. Okay. So lens maker formula. In the lens maker's formula, बेटा you may do many things. Formula क्या है अपना? 1 by f is equal to n21 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. ये बन गया अपना फॉर्मूला. ये फॉर्मूला बन गया अपना लेंस मेकर्स फॉर्मूला. तो यहाँ पे we can have different type of लेंस मेकर फॉर्मूला. यहाँ पे फर्स्ट ऑलवेज रिमेंबर, क्या रिमेंबर करना है आपको, ये आपको लिख के लेना पड़ेगा. तो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन एवरीबडी. तो क्या क्या लिख के लेना पड़ेगा. यहाँ पे N21 है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. हाँ बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1. तो ये पहले बनता है. मतलब सपोज मेरा जो मीडियम है वो लेंस का ग्लास मीडियम होगा. I will have the glass medium. Are you getting my point? So glass medium के लिए बेटा अभी क्या बन जाता है, ग्लास मीडियम में लेंस को बाई फोकल बोलते हैं. दो फोकस होते हैं लेंस को, बाई फोकल बोलते हैं उसको. हम यूज करेंगे आइदर कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस. सो बाईफोकल लेंस के लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ पे whenever you will be dealing with this type of this, so in that case always keep in mind क्या मैं लिख के दे रहा हूँ वो आपको हरदम ध्यान रखना होगा. Always keep in mind N1 को आप एयर लेना है. N1 को क्या लेना है बेटा, N1 को अपना एयर मीडियम लेना है. एंड N2 विल बी अवर ग्लास मीडियम. ऑलवेज कौन सी भी कंडीशन है, कौन सा भी प्रॉब्लम है, तो अगर हम लेंस मेकर्स फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, देन ऑफ कोर्स बेटा N1 विल बी योर एयर एंड N2 विल बी योर ग्लास. दैट यू हैव टू कीप इन माइंड. समझ में आया बेटा.
फिर से बता देता हूँ, मेरे को लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना है, आई हैव टू यूज दैट, देन इन दैट केस वॉट एवर n21 आई एम यूजिंग दैट विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। तो अपने केस में मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये 1 लेने का है एयर, मतलब n1 बन जाएगा द मीडियम, ठीक से ध्यान में रखो, द मीडियम इन विच लेंस इज प्लेस्ड। तो n1 आपका क्या बनता है, n1 इज द मीडियम इन विच योर लेंस इज प्लेस्ड। आपकी लेंस कहां पे प्लेस की है, एयर में किया है, तो n1 विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर। अगर वाटर में डाला है उसको तो n1 विल बी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, n2 will be refractive index of glass। एयर में रखा है तो n1 will be the refractive index of air, n2 will be the refractive index of glass। तो आपको जो n21 ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये आप कौन सा यूज करेंगे, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इसको मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बोल सकता हूं, आई कैन कॉल इट एज रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बन जाएगा मेरा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये फर्स्ट चीज होगी। यहां पे इसको अगर मैंने स्प्लिट किया, मेरा n21 कितना बनता है, n21 विल बी n2 अपॉन n1, दैट इज v1 अपॉन v2। तो मेरा n21 कैसे बन जाएगा, n21 कैन बी रिटन एज n2 अपॉन n1 और n21 कैन आल्सो बी रिटन एज v1 अपॉन v2। तो इसी फॉर्मूला को हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। तो नंबर 1, फॉर्मूला नंबर 1, यहां से क्या मिल सकता है, 1/f इज इक्वल टू n2 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये बन गया मेरा फर्स्ट फॉर्मूला। ध्यान से देखो उसको, ध्यान से फॉर्मूला को देखो मैंने क्या बना है, 1/f विल बी n2 अपॉन n1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इसी को अगर मैंने आगे किया, ये कुछ नहीं है, मेरा डेरिवेशन का स्टेप्स है, जो स्टेप वाइज मैंने डेरिवेशन उसका किया था उसी स्टेप को अगर मैंने रिवर्स इंजीनियरिंग किया, उसका रिवर्स खोलते गया मैं उसको, जैसा हम एक कोई भी मशीन लगाते हैं उसमें स्क्रू वगैरह फिट करके उसको पूरा करते हैं, वैसे उसको रिवर्स खोलते हैं। तो खोलने के लिए पहला पार्ट जो हम खोलते हैं वो लगाने के लिए लास्ट में लगाते हैं। The part which has been open at first will be locked at last, correct? And the part which has been opened at last will be locked at first। Are you getting my point? वैसे ही इसको एक 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 डीकैप्सुलेट करते जाएंगे। तो 1/f ये क्या बनेगा बेटा, 1/f will be, अभी इसको करते हैं n2 माइनस n1 अपॉन n1 into 1/r1 माइनस 1/r2। तो यहां पे मैं बार बार क्यों दिखाने जा रहा हूं आपको, क्योंकि यहां पे जो r1 है, यहां पे जो r2 है, उसमें एक पॉजिटिव है ऑलवेज और एक क्या है, एक आपका ऑलवेज निगेटिव है। ऑलवेज कीप इन माइंड, क्या ध्यान में रखना है, वन ऑफ द r इज पॉजिटिव एंड अदर इज निगेटिव। ये इंपॉर्टेंट है। शायद वो कभी कभी आपका r1 पॉजिटिव है तो आपका r2 निगेटिव बन जाएगा, कभी कभी आपका अगर r1 निगेटिव है तो r2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो दिस वन यू हैव टू कीप इन माइंड। अगर आपका एक सरफेस फ्लैट है, r1 फ्लैट है नहीं तो r2 फ्लैट है, जो सरफेस फ्लैट है उसका लिखने का इंफिनिटी, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बन जाएगा, इंफिनिटी बन जाएगा। अगर वो इंफिनिटी बनने जा रहा है मतलब आपका 1/∞ 0 आ जाएगा बराबर, वो भी दिखाएंगे बाद में। इसके बाद में तीसरा लिखते हैं, थर्ड वन, ये तो हो गया, ये बन गया आपका n2 अपॉन n1। तो अभी इससे ही दूसरा एक फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया नहीं है तो n2 अपॉन n1 को मैंने क्या लिखा है, v1 अपॉन v2, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो v1 अपॉन v2 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये बन गया थर्ड फॉर्मूला। कितने फॉर्मूला है, किस किस को मैं याद करूं, याद करने का जरूरत ही नहीं है, ये फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला से आप
पता कर सकते हो कौन कौन से फॉर्मूला मैंने यूज किया है ना बेटा। और एक फॉर्मूला मिल सकते हैं आपको, वो कौन सा मिलेगा बेटा, ये बन जाएगा 1/f इज इक्वल टू, यहां से v1 अपॉन v2, तो मैं क्या लिख सकता हूं, v1 माइनस v2 अपॉन v2 1/r1 1/r2, ये बन गए 4 फॉर्मूले। समझ गए बेटा। सो आई सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, अगर आपको करना है तो ये फॉर्मूला को नोट डाउन कर सकते हैं। तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या आता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में आपको हर टाइम क्या करना पड़ता है कि आपको वो दे देंगे कि पहले टाइम लेंस को हमने एयर में रख दिया, दूसरे टाइम हमने लेंस को वाटर में रख दिया, तो ये फोकल लेंथ आया। लेंस को अगर एयर में रख दिया तो ये फोकल लेंथ आया था, वाटर में रख दिया तो ये फोकल लेंथ आया था, तो उसका R1 देते हैं, एक दे सकते हैं आपको, R2 पता करने के लिए बोल सकते हैं, नहीं तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ वन मीडियम यू हैव टू फाइंड आउट। उसके दौरान आपको ये इंपॉर्टेंट होता है, वो कैसा, वो करके दिखाते हैं फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सपोज केस 1 दिया है, वहां पे मीडियम सपोज एयर एंड ग्लास लिखते हैं, एयर एंड ग्लास मतलब lens has kept in air medium. Suppose lens kept in air, तो मैं कैसे लिखता हूं, 1/f1 इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, nga माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। केस 2, वाटर एंड ग्लास, मतलब क्या किया, अभी मैंने लेंस को एयर में नहीं रखा है, मैंने मेरे लेंस को वाटर में रखा है, तो उस टाइम उसका फोकल लेंथ चेंज हो जाएगा, लेकिन बट द रेडियस ऑफ कर्वेचर विल नॉट चेंज, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर तो लेंस को जब आपने फॉर्मुलेट किया था, जो लेंस को फॉर्म किया था, लेंस को कंस्ट्रक्ट किया था, एट द कंस्ट्रक्शन टाइम ऑफ द लेंस you have decided what will be your R1 and what will be your R2, so there is no issue about asking R1 and R2, तो वो तो बाजू रहता है। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, 1/f2 it will be ngw minus 1 upon R1 minus 1 upon R2। तो अभी अगर हमको अभी ये तो मालूम है अपने को, रिफ्लेक्टिव इंडेक्सेस मालूम है, तो ये अगर आपको दिया है तो इस केस में इतना आता है, तो इस केस में कितना फोकल लेंथ आएगा, तो डायरेक्टली ऑलवेज टेक रेशियोज। तो अगर इसका रेशियो लिया मैंने तो क्या बन जाएगा, 1/f1 अपॉन 1/f2 विल बी nga माइनस 1 डिवाइडेड बाय ngw माइनस 1, ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/r1 माइनस 1/r2 अपॉन 1/r1 माइनस r1 माइनस 1/r2, ये तो कैंसिल हो जाएगा, खाली ये बचेगा। तो आपको क्या इक्वेशन क्या मिलेगा, that is very important and I will write that equation only over here। तो आपको क्या मिलने वाला है बेटा, then you will get some ratio of f1 and f2। तो रेशियो क्या मिलने वाला है, यहां से क्या मिलता है, f1 नीचे जाएगा, f2 ऊपर चला जाएगा, तो मेरा रेशियो आई विल गेट f1 अपॉन f2 विल बी इक्वल टू, f1 अपॉन f2 विल बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा बेटा, nga माइनस 1 अपॉन gw माइनस 1। तो एक फॉर्मूला मिल जाएगा, अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। इसको अगर मैंने स्प्लिट किया, इसके आगे f1 अपॉन f2 क्या मिल जाएगा बेटा, nga, दैट इज ng माइनस na अपॉन na डिवाइडेड बाय ng माइनस nw अपॉन nw। तो ये क्या मिल जाएगा बेटा, what I will get with ng minus na upon na multiplied by nw upon ng minus nw। हो गया बेटा। तो 1/f1 1/f2 क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी f1 f2 f1 अपॉन f2 मिल जाएगा मेरे को
एन डब्ल्यू इंटू एन जी माइनस एन ए अपॉन एन ए इंटू एन जी माइनस एन डब्ल्यू। लेकिन अपना एन ए कितना है, एन ए है 1, तो एन ए अगर 1 है तो यही फॉर्मूला मेरा क्या बन जाएगा बेटा, अगर मेरा एन ए 1 है तो क्या मिल जाएगा बेटा, अगर एन ए 1 है then I will come up with F1 upon F2 will be equal to NW into NG minus 1 upon NG minus NW, ये भी हो सकता है। तो एक फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा है, अगर यहां से मैं इन द फॉर्म ऑफ इनका अगर मैं रेशियो निकालूं, यहां से फिर से लेता हूं इसको मैं, और यहां से लेके अगर मैं इसको इन द फॉर्म ऑफ रेशियो बनाऊं तो क्या बन जाता है, F1 अपॉन F2 क्या बन जाएगा, NGA। NGA कितना आता है, NGA आता है आपका NG अपॉन NA दैट इज VA अपॉन VG दैट इज C अपॉन VG, बराबर। तो ये बन जाएगा C अपॉन VG माइनस 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या आएगा VW अपॉन VG माइनस 1। तो ये कितना बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका C अपॉन VG माइनस 1 मतलब C माइनस VG अपॉन VG डिवाइडेड बाय VW माइनस VG अपॉन VG। तो ये कितना बन जाएगा, VG VG तो कैंसिल हो जाएगा बेटा, तो C माइनस VG अपॉन VW माइनस VG। तो इन द फॉर्म ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आपको मिल सकता है अगर आपको उसको कैलकुलेट करना है तो। सो इन दिस वे द लेंस मेकर फॉर्मूला इज अ टूल, लेंस मेकर फॉर्मूला इज अ टूल बाय यूजिंग व्हिच यू कैन calculate whatever you want. So that was the motive behind telling all this stuff. So I hope you have understood that. Are you getting my point? Last time I think we have ended with optical fiber, है ना? So that was the total internal reflection. So I will not put more flash on it. There are multiple applications of total internal reflection. वो बाद में देखते हैं। ये point मैं समझ रहा हूँ कि it's very important to note down about. तो अगर दूसरा है केस टू आपको अगर ऐसे दिया, केस 2 दिया आपको प्लेनो कॉन्वेक्स दिया, प्लेनो कॉन्वेक्स, ओके। तो प्लेनो कॉन्वेक्स में क्या आएगा, ये प्लेन हो जाएगा और ये कॉन्वेक्स हो जाएगा, है ना, ओके, प्लेनो कॉन्वेक्स, ओके। तो यहां पे क्या हो जाएगा, और प्लेनो कॉन्केव भी है आपका, प्लेनो कॉन्केव भी है, ओके। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यहां से यहां जा रहे हैं इसलिए बोल रहा हूं, ओके। तो यहां पे क्या बन जाएगा, ये जो आप ले रहे हो, ये एक लेने का R1 अगर लिया, R2 लिया, तो यहाँ पे R2 लेने का इंफिनिटी और R1 लेने का R। तो यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिख लोगे, यहाँ पे भी R2 लिख लोगे इंफिनिटी, R1 इज इक्वल टू R। नहीं तो ऐसा भी होता है और ऐसा भी होता है। तो यहाँ पे R1 लेने का इन्फिनिटी, R1 लेने का इन्फिनिटी। तो यहाँ पे कैसे इक्वेशन कैसे बनेगा, इन सब के लिए आपका इक्वेशन ऐसे ही बनेगा कि ये मिनों का 1 बोलो, ये 2, ये 1, ये 1, ये 2, ये 1, ये 1, ये 2, ये 1, ये 1, ये 2, ये 1। 1 मतलब अपना एयर बन जाएगा, 2 मतलब अपना क्लास बन जाएगा। तो इस चीज में आपका डायरेक्ट फॉर्मूला यू कैन यूज, डायरेक्ट फॉर्मूला टू यूज कैसे बन जाएगा बेटा, डायरेक्टली बताता हूं, 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1 इंटू 1/r, और ये r कितना बन जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व्ड सरफेस। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 1/f इज इक्वल टू n21 माइनस 1 अपॉन r। तो ये क्या बन गया, वेयर r इज क्या बन जाएगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कर्व सरफेस बन जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल, नॉट दैट मच ऑफ डिफिकल्ट, ओके। अगर बाई कॉन्वेक्स है, बाई कॉन्वेक्स में क्या करोगे, बाई कॉन्वेक्स और बाई कॉन्केव, उसमें क्या ध्यान में रखना है,
R1 will be equal to R2, 1 पॉजिटिव 1 निगेटिव, वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो जीरो बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, R1 माइनस R2, 1 बाय R माइनस 1 बाय R, जीरो। सर ये फोकल लेंथ आ ही नहीं रहा है, आप पूछोगे मेरे को सर फोकल लेंथ जीरो आ रहा है, इन्फिनिटी आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, कैसे? तो ऐसे नहीं होता है, तो R1 एक को पॉजिटिव लिया तो दूसरे को निगेटिव लेना है, इसका मतलब आपको फिर से 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2 दैट इज 1 बाय R1 माइनस माइनस प्लस 1 बाय R2 दैट इज 1 बाय R प्लस 1 बाय R। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट इज 2 बाय R। तो इन जनरल मैं कैसे लिख सकता हूं? इन जनरल मैं लिख सकता हूं 1 बाय F इज इक्वल टू फॉर बाय कॉन्वेक्स, बाय कॉन्वेक्स और बाय कॉनकेव, बाय कॉनकेव। तो इन जनरल में लिख सकता हूं n21 माइनस 1 इंटू 1 बाय R प्लस 1 बाय R। तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाय F विल बी n21 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन R। तो ये कितना बन जाता है? 1 बाय F इज इक्वल टू 2 इंटू n21 माइनस 1 अपॉन R। ये बन गया। तो इससे आपको अगर फोकल लेंथ का फॉर्मूला निकालना है, ये उल्टा हो जाएगा, F विल बी R अपॉन 2 इंटू n2 माइनस 1। सो फॉर्मूला क्या बन जाता है? F विल बी R अपॉन 2 इंटू n21 माइनस 1। सो इसके बाद मैं आपको डिफरेंट तरह के फॉर्मूला नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम देते जाऊंगा। तो ये अपना बन गया। वंस अगेन आई स्टार्टेड विद 1 बाय F इज इक्वल टू n21 माइनस 1 इंटू 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2। ये मिल गया मेरे को बेसिक फॉर्मूला। यहाँ से मैंने बहुत फॉर्मूला मैंने डिराइव किया। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अभी मैंने जो निकाला, F कितना बन जाता है आपका? F बन जाता है R अपॉन 2 इंटू n21 माइनस 1। बन गया बेटा? तो फॉर एग्जाम्पल ऑयल में रखा है, ऑयल में, तो आपका क्या बन जाएगा? F विल बी R दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द गिवन कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस 2 इंटू NGO, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू ऑयल रखना है। अगर वाटर में रखा लेंस तो कैसे लिखेंगे? F विल बी R अपॉन 2 इंटू NGW माइनस 1। हो गया, खत्म। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर बनाया है ना? दिस इज द थिंग। अगर एयर में रखा है तो अपना रेगुलर, एयर में कैसे आएगा? F विल बी R अपॉन 2 NG माइनस 1। बस हो गया। तो आपको तो मालूम है NG कितना होता है एयर में? NG तो कितना होता है एयर में? 1.5 होता है। तो 1.5 माइनस 1 0.5 का मतलब 1/2। आर गेटिंग माय पॉइंट? है ना बेटा? समझ गए? तो इसी के चलते हमें एक फॉर्मूला भी मिलता है, उसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय यूजिंग प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस मेथड। तो ये मेथड क्या है? ये आपको प्रैक्टिकल में आता है। यहाँ पे करके दिखाता हूँ। हम क्या करते हैं कि मिरर लेते हैं, मिरर के ऊपर एक लेंस लगाते हैं, कॉन्वेक्स लेंस। तो क्या होता है बेटा? ये जो बीच वाला सरफेस है रह जाता है, और यहाँ पे हम एक स्टैंड पे एक पिन को प्रोजेक्ट करते हैं यहाँ पे, और पिन का मिरर में जो इमेज मिलता है वो देखते हैं, और वहाँ पे हम क्या करते हैं? उसके ऊपर वाटर डालते हैं। वाटर डालने के बाद वो लेंस रखते हैं, और लेंस लगाने के बाद क्या होता है? यहाँ पे ये सरफेस मेरा प्लेन बन जाता है। तो अभी क्या मिलेगा मेरे को? आई विल गेट अ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, है ना बेटा? प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। बट यहाँ पे जो प्लेनो कॉन्वेक्स मिलेगा ये पूरा का पूरा ग्लास का नहीं होगा, पूरा का पूरा वाटर का भी नहीं होगा। द लेंस विल बी द मिक्सचर ऑफ टू मीडिया दैट इज वाटर एंड ग्लास। सो यू कैन नॉट डायरेक्टली इम्प्लाई दिस फॉर्मूला। फॉर दैट उसके लिए आपको दो मेथड से वो निकालना पड़ेगा, और निकाल के यू कैन गेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर। क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर आपको मालूम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू एयर आप कर सकते हो। ये तो बन गया एक। क्योंकि अभी प्रैक्टिकल चालू नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा
प्रैक्टिकल के पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ। दूसरा क्या करते हैं, अभी हम जाते हैं, ये तो हो गया पूरा लेंस मेकर फॉर्मूला का। अभी हम फिर से प्रिज्म को जाते हैं, है ना। तो प्रिज्म को हमने क्या क्या लिखा है वो आपको एक बार मैंने फिर से दोहरा देता हूँ। तो ये बन गया एंगल ऑफ प्रिज्म ए बराबर आई इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंस लिखता हूँ, ई इमर्जेंस, R1 R2 रिफ्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, डेल्टा डेविएशन के लिए यूज करते हैं। ये हो गया, तो ये पूरा हो गया। तो अभी इसमें हम क्या कर सकते हैं, A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, ये एक फॉर्मूला है वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। A प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस ई, ये तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसके बाद हम जाते हैं डेल्टा एम, जो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था। सो डेल्टा एम इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, ओके, मिनिमम डेविएशन बोलते हैं इसको, एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। सो व्हेन डेल्टा विल बी इक्वल टू डेल्टा एम, उस टाइम क्या होता है, उस टाइम मेरा आई इज इक्वल टू ई बनता है। तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस डेल्टा एम विल बी इक्वल टू 2i, और मेरा डेल्टा एम क्या बनता है, डेल्टा एम सॉरी आई क्या बनता है मेरा, आई बनता है ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 बनता है। ये इंपॉर्टेंट है, कब होता है, व्हेन आई एम कंसिडरिंग द केस फॉर द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। मिनिमम मतलब क्या, उससे कम डेविएट हो नहीं सकता, उससे ज्यादा कितना भी हो, उससे कम डेविएट हो नहीं सकता। डेविएट मतलब आपको समझ रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है तो डबल रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्रैक्शन के लास्ट रिफ्रैक्शन मतलब इमर्जेंस के बाद वो अगर ऐसे चला गया तो ये इंसिडेंट एंगल से कितना एंगल कर रहा है, ये बन जाएगा डेविएशन। तो ये अगर मैंने सपोज डेल्टा एम मिनिमम डेविएशन कंसीडर करें, इससे कम डेविएट नहीं हो सकता, किसके लिए, इस असेंबली के लिए, क्योंकि एंगल ऑफ प्रिज्म इज कांस्टेंट। मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म कांस्टेंट है, अगर मेरा एंगल ऑफ प्रिज्म कांस्टेंट है तो इससे कम डेविएशन मुझे मिल नहीं सकता। सो हाउ आई कैन गो विद दैट, ओके, तो वो भी हम देखते हैं। तो इस कंडीशन में म्यू कैसे बनेगा, साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 अपॉन साइन ए बाई 2, ये बन गया अपना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बन गया, ये बन गया इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और क्या कर सकते हैं, दैट आई विल टेल यू। एनीथिंग मोर वी कैन गो विथ, यस, फॉर स्मॉल एंगल्स, okay, sin theta will be nearly equal to theta, okay, तो म्यू क्या बन जाएगा, म्यू बन जाएगा a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 इंटू 2 बाई ए, ये साइन चला जाएगा, ये डायरेक्टली लिखा मैंने, अगर आपको चाहिए तो मैं वो करके भी दिखा सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या बन जाएगा, साइन a प्लस डेल्टा m डिवाइडेड बाई 2, तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई ए बन जाएगा a बाई 2। अब इसको मैंने अगर फिर से एडजस्ट किया तो ये बन जाएगा a प्लस डेल्टा m अपॉन 2 इंटू 2 बाई ए, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू मुझे क्या मिलेगा, a प्लस डेल्टा m अपॉन a मिलेगा। अगर इसको मैं स्प्लिट करूं तो मुझे मिल जाएगा a बाई ए प्लस डेल्टा m अपॉन a। नहीं तो यहां से भी मैं कर सकता हूं, क्या कर सकता हूं, यहां से मैं म्यू के लिए फॉर्मूला रिफ्रेम कर सकता हूं। तो ये क्या मिलेगा मेरे को, म्यू ए इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा एम, सो म्यू ए माइनस ए विल बी डेल्टा एम। तो यहां से डेल्टा एम का और एक फॉर्मूला मिल गया, डेल्टा एम विल बी कितना बन जाएगा, डेल्टा एम विल बी म्यू माइनस 1 इंटू ए। अभी इसके लिए आपको हरदम डेल्टा एम ही लिखने का जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है, डेल्टा एम ही लिखने का जरूरत है, ऐसा कुछ नहीं है। सो डेल्टा एम का वैल्यू आपका बन जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए। सो आई विल सजेस्ट यू टू नोट दिस डाउन, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इट इज, इसको नोट डाउन करके ले लो, ओके। आफ्टर दैट वी विल गो फॉर अनदर पॉइंट।
Now what will happen? Now what will happen? That we will see. Okay. So what will happen now is, just now I will discuss with you. New formula for delta will be mu minus 1 into A. Mu minus 1 into A. Are you getting my point? Okay. Now we suppose whatever is our white light. White light is actually the combination of 7 colors. Combination of 7 colors. That you know, we've got. तो कलर कौन कौन सा आता है? कलर आता है आपका, पहले आता है रेड, देन ऑरेंज, ऑरेंज के बाद येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो एंड वायलेट. ये बन गया 7 कलर. तो अभी क्या होता है, वंस वी टेक दिस व्हाइट लाइट, we take this white light here, इसको बोलते हैं हम व्हाइट लाइट. कलर का मतलब क्या है? क्रोमो. क्रोमो का मतलब क्या है? कलर. क्रोम, गूगल क्रोम है ना आपका, ब्राउजर को नाम दिया है क्रोम. क्यों नाम दिया है? उसमें अलग अलग टाइप के कलर दिए, ऐसा राउंड है ना, उसमें तीन चार कलर का मिक्स करके उसको क्रोम बना के. क्रोम मतलब क्या? कलर. ग्रीक या लैटिन में उसको क्रोम को कलर बोलते हैं, क्रोम. नाउ इट इज अ मल्टी क्रोमो हियर. एक्चुअली व्हाइट लाइट इज डिफरेंट, उसमें हर टाइप के कलर मिक्स होते हैं. एक्चुअली ये क्या होता है, ये जो लाइट अपना जाता है, ये बन गया आपका रेगुलर लाइट. तो यहां से क्या होता है, ईच लाइट बिलोंग्स टू वेवलेंथ. सो ईच कलर बिलोंग्स टू डिफरेंट वेवलेंथ. वेवलेंथ का मतलब क्या होता है बेटा? अभी थोड़ा सा हम पार्टिकल से थोड़ा वेव में घुसेंगे, पूरा वेव नेचर नहीं देखेंगे, लेकिन आपके लिए मैं थोड़ा उसको करके दिखाता हूं. तो क्या बन जाता है, एनी कलर, ईच एंड एवरी कलर बिलोंग्स टू सम वेवलेंथ. ये क्या होता है, तो दिखाता हूं आपको. मैं यहां पे दिखाता हूं. अगर आपने रेड कलर का ग्राफ निकाला है, इंटेंसिटी छोड़ दो, ये रेड के लिए क्या बन जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव क्रेस्ट एंड ट्रक्स, लैम्बडा रेड. और उसी सेम टाइम को अगर आपने वॉयलेट के लिए लिखा है, तो वॉयलेट के लिए से ऐसे बनेगा. ये बन गया मेरा लैम्बडा वॉयलेट. व्हाट यू आर लुकिंग फ्रॉम द ग्राफ. ग्राफ में से आपको क्या दिख रहा है? आपको ये दिख रहा है कि रेड का अगर मैंने लिया वेवलेंथ, तो इतना बड़ा बड़ा आ रहा है. वैसे ही अगर दूसरी पॉइंट को अगर मैंने वॉयलेट को लिया, तो वॉयलेट का इतना सा आ रहा है, एकदम छोटा आ रहा है. तो लैम्बडा रेड इज लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, और शॉर्टेस्ट कितना है? लैम्बडा वॉयलेट. यह है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ. तो क्या होता है, while going through the prism they go with different deviations. अपना अपना डेविएशन वो अलग दिखाते हैं. कैसे अलग दिखाते हैं? जिसका वेवलेंथ ज्यादा है, डेंजर सिग्नल्स आर मेड अप ऑफ रेड कलर. गाड़ी के टेल लाइट है, रेड कलर से होते हैं, ब्लू कलर से नहीं होते, ग्रीन कलर से नहीं होते. इंडिकेटर ऑरेंज टाइप के होते हैं, लेकिन टेल
टेल लाइट जो है, ब्रेक लाइट, ब्रेक लगाने के बाद डेंजर, आगे वाला ब्रेक लगा रहा है, आपको सावधानी बरतनी होगी। अपना जो फ्यूज होता है, फ्यूज मतलब फ्यूज नहीं है, कनेक्शन में होता है, उसका लाइट कौन सा होता है? रेड लाइट। क्यों? लॉन्गर डिस्टेंस से भी दिखना चाहिए आपको कि वहां पे कुछ खतरा है। डेंजर सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल रेड कलर का होता है, रुकने का रेड कलर का, बाकी ग्रीन। रुकने का रेड कलर का क्यों होता है? एकदम दूर दूर से भी दिखना चाहिए कि आगे रेड सिग्नल है, मानो आगे आपको रुकना है, फॉग भी है, कुछ भी है, तो रेड कलर तो दिख जाता है, बिकॉज इट ट्रेवल्स लॉन्गर डिस्टेंस, इट ट्रेवल्स अ लॉन्गर डिस्टेंस। रेड कलर इजीली डाई अवे नहीं होता है, रेड कलर इज नॉट इजीली वैनिशेबल, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता है। गेटिंग माय पॉइंट? ऑन द अदर हैंड ब्लू है, ब्लू स्कैटर ज्यादा करता है, स्कैटरिंग क्या होता है वो बाद में आपको बताएंगे। ब्लू कलर तो ज्यादा स्कैटर करता है, बिखरता है वो। रेड कलर ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो ये आपको क्यों बताया ये? बिकॉज यहाँ पे एक बात होती है, हर कलर यहां से जो डेविएट हो जाएगा वो डिफरेंटली होता है, स्प्लिट होता है। एक एक कलर यहाँ पे स्प्लिट होता है, 1 2 3 4 बन गया, 5 6 और 7। ओके, तो अभी बेसिक कलर को हम, बेसिक जो व्हाइट लाइट गया था उसको हम ऐसे डॉट से कंसीडर करते हैं। सपोज ये मेरा एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे है, ये मेरा है एक्चुअल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे। यहां से अभी आफ्टर रिफ्रैक्शन, सेकंड रिफ्रैक्शन, ये भी थोड़ा जाएगा ना, ये ऐसा हो जाएगा, ये थोड़ा ऐसे हो जाएगा, ये और थोड़ा मुड़ेगा, ये और थोड़ा मुड़ेगा, ये और भी मुड़ेगा, ये उससे भी और मुड़ेगा, ये ज्यादा मुड़ेगा। तो अभी सबको जोड़ देता हूं मैं, हाँ 1 2 3 4, और ये क्या मिलेगा मेरे को? ऑफ कोर्स विप गायर। तो ये मिलेगा वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, येलो और रेड। देखो है ना? तो यहां से अगर मैं चालू किया, इफ आई हैव स्टार्टेड विद द रेड कलर, देन व्हाट विल हैपन बेटा? मेरा जो रेड वाला है तो यहाँ पे दिखेगा मेरे को, तो ये बन जाएगा एंगल मेड बाय रेड कलर लाइट विद द, सो ये बन जाएगा डेल्टा रेड। सो डेल्टा आर विल बी एंगल ऑफ डेविएशन फॉर रेड कलर। आगे चला गया मैं, तो ये बन जाएगा मेरा यहां से आगे, ये बन जाएगा मेरा, ये क्या बन जाएगा? डेल्टा वाई। वैसे ही अगर करते गया तो हर एक एंगल के लिए मेरा डेल्टा बढ़ता जाएगा, एंड लास्टली मेरे को मिल जाएगा बड़ा वाला, ये मिल जाएगा डेल्टा वायलेट। तो एज लैम्बडा रेड इज ग्रेटेस्ट एंड लैम्बडा वायलेट इज least, therefore delta red is least and delta violet is most. So red color deviates least and the violet color deviates most. Okay, तो यहाँ पे लिख सकते हैं रेड कलर, ये आपको दिखाई दिया है ना। इसके आगे हम जाते हैं, आगे क्या करते हैं, तो ये इधर लिख के दिखाता हूँ आपको। ओके, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे हम थोड़ा सा इसका एनालिसिस करते हैं। ओके, और उसको बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। तो इसको हम नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। इसका डेफिनेशन कैसा बनाएंगे बेटा? डेफिनेशन एकदम सिंपल है, स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स। ये आपको 10th में हुआ है, splitting of white light into 7 constituent colors is called as dispersion of light। और ये जो मिलता है आपको, ये जो मिलता है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम। इसको क्या बोलने का? इसको बोलने का स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स, स्पेक्ट्रम ऑफ कलर्स।
तो ये मिल गया आपका स्पेक्ट्रम. The splitting of white light into 7 constituent color will be called as our dispersion of light. तो कैसे पता करते हैं? तो रेड कलर, ये लिख के लो आपके पास, रेड कलर हैज longest wavelength, whereas violet color has shortest wavelength. रेड कलर को आपका कौन सा होता है? एकदम लॉन्गेस्ट वेवलेंथ होता है, और वॉयलेट कलर को क्या होता है? आपका एकदम शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होता है. देयरफॉर रेड कलर डेविएट लीस्ट, एकदम कम डेविएट होता है, एंड वॉयलेट कलर डेविएट्स मोस्ट. और इसमें से हर एक कलर का अपना अपना डेविएशन बदलते रहता है. इसलिए फॉर येलो कलर इज टेकन एज मीन कलर. येलो कलर इज टेकन एज मीन कलर. तो येलो के लिए जो डेविएशन आता है वो आपका मीन लेते हैं, क्योंकि वो आपका जो व्हाइट लाइट के लिए एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन जो वगैरह मिलता है डेल्टा, सो डेल्टा वाई इज रेफर्ड एज रेफरेंस. इसको मीन कलर बोलते हैं. तो यहां से क्या मिलता है अपन को? मिलता है यहां से डेल्टा वाई, डेल्टा बी, डेल्टा आर. समझ गए बेटा? ए तो कॉमन है सबके लिए, है ना बेटा? तो ए तो कॉमन ही रहता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो तो यहाँ पे we will next we will learn a very important thing that will be called as the angular dispersion, and second one will be the dispersive power. Angular dispersion and dispersive power. So I will suggest you to note this down. इसको note down करो. इसके बाद हम जाएंगे angular dispersion and then we will go for the dispersive power. Okay? So friends, I hope you have written that. Sorry for some change I have to do. I wrote Y above and O down. Okay, so that was my mistake. Very sorry for that. Vibgaya, that you know very well. अभी हम देखते हैं बेटा what happens actually for each color. अपना तो एंगल ऑफ प्रिज्म सेम है, प्रिज्म का मीडियम मैंने चेंज नहीं किया है, फिर भी ये डेल्टा चेंज क्यों होता है? क्योंकि लेट मी शो यू द थिंग, क्योंकि प्रिज्म जो होता है, प्रिज्म उसका मीडियम क्या होता है? ग्लास होता है. तो व्हाइल गोइंग थ्रू ग्लास मीडियम, ये अपना जो लाइट स्प्लिट होता है ड्यू टू प्रिज्म बिहेव्स एज डिफरेंट इन ईच केस. मैंने आपको डेल्टा का फॉर्मूला क्या बताया था? डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. तो ज्योमेट्रिकली हम ए को तो चेंज नहीं कर सकते बेटा, ए तो एंगल ऑफ प्रिज्म है. सो व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द प्रिज्म दैट एंगल इज डिसाइडेड, दैट वी कैन नॉट चेंज. प्रिज्म को तो चेंज नहीं कर सकते, एक बार बन गया वो बन गया. जो भी कुछ एंगल है वो उसका एंगल ऑफ प्रिज्म बन गया, उसमें तो चेंज नहीं कर सकते. फिर भी अपना डेल्टा आर और डेल्टा वी क्यों चेंज होता है? इसके लिए रीजन एक है, फॉर ईच कलर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इज सपोज्ड टू बी डिफरेंट. तो एक डायलेमा हो गया. सर आप तो बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होता है, वो बदलता नहीं है. हाँ बेटा बराबर है, लेकिन वो मैंने बताया था व्हाइट लाइट के लिए. यहाँ पे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्प्लिटिंग ऑफ लाइट. हाउ मेनी कलर्स इट इज मेड अप ऑफ? 7 colors it is made up of. So you have to keep in mind why this happens, because each color has its own wavelength. तो C is equal to nu lambda. C तो कांस्टेंट रहेगा, लैम्डा चेंज हो रहा है. तो कहीं पे भी आपका
म्यू का वैल्यू वहां पे चेंज रखना पड़ता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डेल्टा फॉर रेड कलर कैन बी रिटन एज डेल्टा आर इज इक्वल टू म्यू आर इन -1 इंटू ए। तो ये चेंज आता है अपना। सो डेल्टा वॉयलेट कैसे बनेगा बेटा? म्यू वी -1 इंटू ए, where delta r is the angle of deviation for red color, mu r is the refractive index of the material for the red color, delta v is the angle of deviation for violet color, mu v is the angle of deviation, refractive index for violet color। ऐसे ही बन जाता है। डेल्टा आर के लिए म्यू आर अलग हो जाता है, डेल्टा ओ के लिए म्यू ओ अलग हो जाता है, डेल्टा वाई के लिए म्यू वाई अलग हो जाता है, ऐसे ऐसे करके डेल्टा वी के लिए आपका म्यू वी अलग होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पे हम एक नया वाला एक चीज सीखेंगे, उसको बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्शन। तो अभी हमने जो बताया आपको, ये डेल्टा वी जो ज्यादा होता है और डेल्टा आर एकदम कम होता है। डेल्टा आर इज लिस्ट एंड डेल्टा वी इज मोस्ट। सो whatever is the difference in the angles of the deviation for extreme colors is called as the angular dispersion। वैसे तो किसी भी कलर के लिए हम वो डिस्पर्शन निकाल सकते हैं। सो एंगुलर डिस्पर्शन इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस ऑफ द angle of deviation for two given colors is called as the angular dispersion। तो बेटा एंगुलर डिस्पर्शन कैसे निकलेंगे? वेरी सिंपल इट इज। तो ये तो हमें मिल गया, इसको मैं अभी रब कर लेता हूँ, थोड़ा सा डायग्राम के आगे निकल के थोड़ा सा फॉर्मुलेशन करते हैं बेटा। फॉर्मुलेशन क्या बन जाएगा बेटा? दिखाते हैं। फॉर्मुलेशन बनेगा आपका, यहाँ पे लिखा मैंने एंगुलर डिस्पर्शन, देयरफॉर थीटा इट इज डिनोटेड बाय थीटा, अगर मैंने थीटा लिया तो ये बन जाएगा डेल्टा आर, ज्यादा कौन सा है? डेल्टा वी है, तो लिखेंगे डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर। बन गया बेटा, ये कौन सा बन गया? एंगुलर डिस्पर्शन बिटवीन द एक्सट्रीम कलर्स, एक्सट्रीम रेड मिनिमम, वायलेट मैक्सिमम। सो एक्सट्रीम कलर के लिए आपको एंगुलर डिस्पर्शन कितना मिलेगा दिखाएगा। अभी थीटा का वैल्यू निकालते हैं। थीटा कितना बन जाएगा बेटा? डेल्टा वी कितना है मेरा? म्यू वी -1, ओके, म्यू वी -1 इंटू ए माइनस म्यू आर -1 इंटू ए। इसको स्प्लिट किया मैंने, क्या मिल गया? म्यू वी ए माइनस म्यू आर ए माइनस प्लस ए ने ए को काटा, therefore theta will be mu v a minus mu r a, therefore that will be mu v minus mu r into a। ये बन गया अपना फॉर्मूला। तो फॉर्मूला कैसे बन गया? it is the change in the refractive index for each separate color, so this is called as the angular dispersion। अगर आपको लिखना है फॉर ऑरेंज एंड ग्रीन, कुछ प्रॉब्लम नहीं, थीटा लिखेंगे, ऑरेंज एंड ग्रीन, सो म्यू जी माइनस म्यू ओ इंटू ए। ये बन गया एंगुलर डिस्पर्शन फॉर ऑरेंज एंड ग्रीन। जिसका डेविएशन ज्यादा है उसको पहले ले लेंगे, कुछ नहीं, इसमें फर्क कुछ नहीं पड़ता है, खाली अपन को उसमें डिफरेंस लिखना है। तो कभी कभी लिखते समय हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू वी म्यू आर और म्यू आर म्यू वी। इसका मतलब क्या है? द डिफरेंस इन द रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ टू सेपरेट कलर्स। ये जो मिल जाएगा वो हम लिख लेंगे एंगुलर डिस्पर्शन के लिए। ओके, तो ये हो गया आपका एंगुलर डिस्पर्शन। एंड नाउ माय फ्रेंड्स वी विल गो फॉर द लास्ट पॉइंट, दैट इज कॉल्ड एज द डिस्पर्सिव पावर। तो अभी हम लास्ट पॉइंट के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं हम डिस्पर्सिव पावर। तो लास्ट में लिखते हैं हम डिस्पर्सिव पावर। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनता है? डेफिनेशन ऐसे बनता है, इट इज द रेशियो
the ratio of angular dispersion of extreme colors to the angular deviation, मतलब angle of deviation for mean color. तो एक्सट्रीम कलर कौन कौन से बन जाते हैं बेटा? तो एक्सट्रीम कौन कौन से बन जाता है? रेड एंड वायलेट. एंड मीन कलर, मीन को बोलते हैं हम येलो. तो ऐसे लिया अगर मैंने, then I can write angular dispersive power omega is theta by delta y. My omega will be theta by delta y. So omega will be written as omega will be delta v minus delta r upon delta y. तो एक फॉर्मूला बन गया, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक बन गया मेरे पास. तो अभी कैसे लिखेंगे? सो ओमेगा विल बी इक्वल टू डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर. ये कितना बन गया मेरा? म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए डिवाइडेड बाय म्यू वाई माइनस 1 इंटू ए. ने को काटा, सो आई एम गेटिंग ओमेगा टू बी इक्वल टू म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू वाई. दैट्स ऑल. So you may use this formula or you may use this formula. There is no issue. Whatever the formula you want to use in the problem solving, you may use that. You are free to do that. That's not a big problem. So that was all about the dispersive power. So friends, today we have learned about the different types of the lens maker formula. Basic is 1 by f is n2 minus 1 into 1 by r1 minus 1 by r2. ये तो इसको बेसिक समझ लिया आपने. इसको अगर हमने तोड़ मरोड़ लिया तो अलग अलग फॉर्मूला कैसे बनता है ये मैंने आपको बताया. प्लेनो कॉन्वेक्स प्लेनो कॉन्केव लेंस के लिए क्या करना है वो भी आपको बताया. इसके बाद में थोड़ा सा हमने सीख लिया है व्हाट टू डू फॉर द डिस्पर्शन ऑफ लाइट. दैट वी हैव फर्स्ट डिस्कस द एंगुलर डिस्पर्शन, सेकंड वी हैव डिस्कस द डिस्पर्सिव पावर. सो ये दो फॉर्मूले हैं, आपको ध्यान में रखना है. कौन सा फॉर्मूला ध्यान में रखना है? डेल्टा एम इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए, ये पहला फॉर्मूला. दूसरा म्यू के लिए हमने जो बोला है म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन 2. फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा नियरली इक्वल टू थीटा किया तो म्यू अपना बन जाता है ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 ए डिवाइडेड बाय ए बाय 2. इसके चलते हमें अपने को फिर से मिलता है डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. सो यूर important formula to keep in mind is delta is equal to mu minus 1 into a. जिस किसी को म्यू डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए ये फॉर्मूला पता है, दे कैन सॉल्व द प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंगली. बाद में आपको सेकंड चीज ध्यान में रखनी है, फॉर ईच डिफरेंट कलर वी कंसिडर द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मटेरियल ऑफ प्रिज्म फॉर दैट पर्टिकुलर डिफरेंट कलर टू बी डिफरेंट. तो डेल्टा आर इज डिफरेंट, देन म्यू आर विल ऑल्सो बी डिफरेंट. डेल्टा वी इज डिफरेंट, then mu v will also be different. Are you getting my point? So that was all about the angular dispersion and dispersive power. So next lecture mostly we will go for the optical instrument, that is the simple microscope, then the compound microscope and then the astronomical telescope. बाद में जो power of lens, combination of lens वगैरह पार्ट है वो हमारे सिलेबस से डिलीट किया है. Still I will be explaining you that, no problem, it's very simple. आपको मैं उसका जो कुछ है वो इंट्रोडक्शन दे दूंगा. देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर दैट. सो नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. सो टिल दैट आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग. Try to see the lecture twice, thrice. If you have any difficulty, then feel free to ask me at any time. There is no problem. Till now, stay home, stay safe, and stay tuned with physics. Bye bye.